શેર સ્ક્રીન કરી હું તમને બતાવું છું કે આ શું છે. ઓકે, હવે અહીંયા શું કહે છે કે સા પુષ્ટિ મર્યાદાતિક્રમો ભગવતો નિયંતુમ અશક્યત્વાત ઇતિ અર્થ. એટલે આ પુષ્ટિ અહીંયા એટલા માટે કીધી કે આ ભગવાનની એવી પુષ્ટિ છે, એવી કૃપા છે કે ઠાકોરજી પોતે પણ આ મર્યાદાનું અતિક્રમ નથી કરતા. એટલે આ ઠાકોરજીની કૃપા જ કહેવાય ને, કે જ્યારે પોતે બંધાઈ ગયા છે તો એ બંધાઈ ગયા પોતે જે વચન આપ્યું છે એનું ઉલ્લંઘન નથી કરતા. આ પુષ્ટિ છે. કસ્યચિત વિશેષતો અંગીકારશ્ચેત સા પુષ્ટિ રીતિ ભાવ. એટલે ત્યાં ભલે સંપૂર્ણ રીતે અંગીકાર નથી કર્યું પણ એક નિવેદકનું તો અંગીકાર કર્યું જ છે. બીજા બધા ભલે અધિકારી નથી, એના પરિવારજન કે જે પણ છે એ તો પણ ઠાકુરજી એનું અંગીકાર તો કરે જ છે. આ પુષ્ટિ છે, આ કૃપા છે ભગવાનની. સમજ્યા ને? એટલે જે નિવેદનની નું અતિક્રમણ કર્યું, નહીતર તો ઠાકોરજીએ સર્વત્રનો અંગીકાર કરવું એવો સામાન્ય રીતે રૂલ કર્યો હોય, એને ન કરી કારણ કે બીજા નથી, તો પછી એને બાદબાકી કરીને કે ના બધા નથી તો તું પણ નહીં, એવું ન કરવાના ન કરવાની જગ્યાએ પ્રભુએ પોતાનો પુષ્ટિ ધર્મ પ્રગટ કરીને કીધું કે ના, હું તને એકલાનો અંગીકાર કરું છું, એ મારી પુષ્ટિ છે જે હું નિયમને એ રીતે તોડી રહ્યો છું. રાઈટ. એટલે તોડી નથી રહ્યા પણ નિયમને પાળી રહ્યા છે. હા, એવી રીતનો પુષ્ટિનો નિયમને પાળી રહ્યા છે. હા, એ નિયમને પાળી રહ્યા. હા, હવે ખબર પડી. એ જ વસ્તુ અહીંયા જો વલ્લભજી આ પુષ્ટિ શબ્દને અહીંયા સા પુષ્ટિ શબ્દને સ્પષ્ટ કરે છે કે સા પુષ્ટિ મર્યાદાતિક્રમો ભગવતો નિયંતુમ અશક્યત્વાત તદા તાદૃશે સ્વદેહ વિનિયોગે ન કાર્ય. હવે ઠાકોરજીએ તો પુષ્ટિ બતાડી દીધી છે, પણ પછી એવા જીવે શું કરવું? તદા તાદૃશે સ્વદેહ વિનિયોગો ન કાર્ય. ઠાકોરજીએ તમારો અંગીકાર કરી એટલે સ્વીકાર જ રાખ્યું છે, તો હવે તમારું કર્તવ્ય શું બને છે કે તમારે એવા જગ્યાએ કે જે પ્રભુએ જેમનો અંગીકાર નથી કર્યો એમની સાથેનો સંબંધ એટલે સ્વદેહ વિનિયોગ ન કાર્ય. જેમ હવે સુરદાસજીના સંબંધમાં તમે જોઈ લો કે સુરદાસજીનો અંગીકાર કર્યું ઠાકોરજીએ, અથવા તો કરવાના હતા એટલે એની એવી બુદ્ધિ કરી કે પોતાના મા બાપને કહી દીધું કે હું તમારું જે સોનું છે એ હું તમને શોધી આપીશ, પણ તમે પછી મારું ત્યાગ, હું આ ઘરમાં નહીં રહું, એમ કહ્યું ને. એટલે ત્યાં પોતાનો દેહનો વિનિયોગ એવી જગ્યાએ નથી કરતા. અને બીજા પણ અમુક 84 વૈષ્ણવ 252 વૈષ્ણવની વાર્તામાં આવે છે કે ઠાકોરજી જયારે એટલે આચાર્ય ચરણો કે ગુસાઈજી જયારે એમનો સ્વીકાર કરી લે છે, એમને પુષ્ટિમાં અંગીકાર કરે છે, તો એ પછી પોતાના ઘરે જઈને કહે છે કે આપ મેરે પાસન અલગ કર દો, અબ મેરો તુમારો સંબંધ નહીં. ત્યાં આ જ વસ્તુ લાગુ પડે છે કે તાદૃશે સ્વદેહ વિનિયોગો ન કાર્ય. અતએવ પ્રતિકૂલે ગૃહમ ત્યજેત ઇતિ વાક્યમ. એટલા માટે જ અહીંયા આચાર્ય ચરણોએ પંચશ્લોકી ગ્રંથની અંદર આ વાત આજ્ઞા કરી છે કે પ્રતિકૂલે ગૃહમ ત્યજેત. એટલે ભાર્યાધીર અનુકૂલશ્ચેત વિષ્ણુ કાર્યાણી કારયેત ઉદાસીને સ્વયં કુર્યાત પ્રતિકૂલે ગૃહમ ત્યજેત. ત્યાં એ વાત કરી છે. તો એ જ વસ્તુ ત્યાં બતાડે છે કે સ્વદેહ વિનિયોગ એવા સંબંધમાં ન કરવો, એના માટે આચાર્ય ચરણોએ આજ્ઞા કરી છે કે પ્રતિકૂલે ગ્રહણ ત્યજેત. જો એ બધા પ્રતિકૂળ હોય સંબંધ, ઘરના સંબંધીઓ, તો એવા ગ્રહનો ત્યાગ કરવો. એ વસ્તુ પણ ધ્યાનમાં રાખજો કે પ્રતિકૂલે ગૃહમ ત્યજેત કહ્યું છે.
એમનો ત્યાગ એમને કાઢવાની નથી, પણ પોતે નીકળી જવાનું છે. પ્રતિકૂલે ગ્રહમ ત્યજેત अस्मिन् पक्षे अन्यत्र स्त्री पुत्रादो विनियोगे स्वस्य देहस्य इत्यर्थ. मतलब એટલે કે આ જો પક્ષ ગ્રહણ કરતા હો તમે કે કેવલ એક નિવેદકનું જ અંગીકાર કર્યું છે અને અન્યનું નથી કર્યું, તો એ પક્ષમાં જ્યારે સ્ત્રી પુત્ર આદિનો અન્યત્ર વિનિયોગ થઈ રહ્યો છે તો પણ શું ચિંતા? તત્વ અન્ય વિનિયોગે પણ ચિંતા કા? એટલે ત્યાં પણ ફરી પાછી એ જ વાત કરે છે કે એમનો અન્ય જગ્યાએ વિનિયોગ થતો જોઈને પણ તમારે ચિંતા કરવાની કોઈ આવશ્યકતા નથી, કારણ કે એમનો અંગીકાર થયો જ નથી. જ્યારે અંગીકાર નથી થયો તો પછી આપણે એની ચિંતા શું કરવા કરવી? આપણે જેનો અંગીકાર થયું છે કે એટલે પોતાનો સ્વદેહનો સ્વનો અંગીકાર થયો છે તો એનું જ વિનિયોગ ઠાકોરજીમાં કરો. અન્યનું વિનિયોગ અન્ય જગ્યાએ થતું હોય તો એની આપણે ચિંતા કરવી નહીં, એ તાત્પર્ય છે. ઓકે, હા, તો જે પછી અત્યારે આધુનિક યુગની અંદર તો એ એવું દેખાઈ નથી આવતું, રાઈટ? તો એવા ઉત્તમ જીવ પણ ક્યાં છે આધુનિક? હા, એટલે એવું જ કહેવા માંગુ છું. મારું કહેવાનું તાત્પર્ય એ જ છે કે એવું દેખાઈ નથી આવતું. હા, એવું દેખાઈ નથી આવતું, કારણ કે કોઈમાં તાકાત નથી એવી રીતે ત્યાગ કરી દેવાની. બરાબર. ચરણોના વચનોને પાલીને. એટલે ત્યાં એ હીનાધિકારીને જઘન્ય અધિકારી વગેરે પ્રકારના જીવો છે અત્યારના, એટલે આવી રીતે થાય છે. हाँ, ओके, तो ये इनकी तो शंका हो गई. और कोई की शंका है कोई? और चलो, तो और कोई की शंका नहीं है तो फिर मैं आप लोगों को ये कर दे रहा हूं, मैं म्यूट कर दे रहा हूं अब, ताकि अपन आगे बढ़े. चलो, तो अपन मैं फिर से शेयर स्क्रीन कर दूं. तो यही को अपन आगे बढ़ावे, यहाँ से ही अपन देखें आगे, ताकि अपनो पहले को रिवीजन भी हो जाएगा. ये इनकी तो पंक्ति अपन को स्पष्ट है कि अथवा पुत्रादि नाम अन्य विनियोग दर्शने भी सस्य का चिंता तेषामपि अंगीकारेणे कृतता संभवात इति अर्थः. હવે अब यहाँ देखो कि प्रतिकूले ग्रहण तेजे विनियोगे सस्य देहस्य इत्यर्थ अन्य विनियोगे. अन्यत्र लौकिके स्त्री पुत्रादि कार्य विनियोग दर्शनेपि तेषां निवेदन हानि जनित चिंता सस्य का अर्थ इत्यर्थ. मतलब अगर वो उनको अंगीकार ही नहीं हुआ है, केवल एक ही को अंगीकार हुआ है, तो ऐसी परिस्थिति में लौकिक में अपने स्त्री पुत्र आदि को लौकिक में विनियोग होते देख के अपने को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है. यूं कह लो कि वहां क्या चिंता, यूं कह रहे हैं. तेषाम अपीति, यहाँ पे जो तेषाम अपी शब्द दियो है, पुत्रादिना अन्य दर्शने भी तेषाम अपी अंगीकारेण कृतार्थता संभवात. तो या को स्पष्ट कर रहे हैं यहाँ वल्लभ जी कि स्व अंगीकारेण क्रमेण तेषाम अपी कृतार्थता संभवती. अपनो अंगीकार हो गया है, उनकी भी अंगीकृति धीरे धीरे होएगी. कभी अगर या जन्म में नहीं हुई तो अगले जन्म में या नहीं होवे की होगी तो नहीं होएगी. चिंता क्या? क्योंकि सब कुछ अपने हाथ, कुछ भी अपने चाहवे या नहीं चाहवे सुख होए वाला नहीं. चाहे होएगा तो वही जो ठाकुर जी की इच्छा है. अगर ठाकुर जी की इच्छा है कि उनको अंगीकार करें तो ठाकुर जी करेंगे, और अगर नहीं कर रहे हैं तो नहीं करेंगे. मैं अपने को क्या चिंता? अपन उनके संग में तो केवल देह को संबंध है, बाकी तो कोई संबंध है नहीं. दैहिक संबंध है. अगर वो ये दैवी जीव नहीं है या ठाकुर जी के अंगीकार करे हुए जीव नहीं है, तो फिर उनके साथ अपनों कोई दूसरा तो संबंध है नहीं. जो भी संबंध है वो या लौकिक कोई संबंध है. तो लौकिक वो तो स्व नहीं है, लौकिक देह वो स्व नहीं है. स्व को क्या है? वो तो आत्मा को संबंध है स्व. तो वो संबंध जाके संग में हो, उनके साथ में अपना संबंध है, तो यासु अपने को क्या चिंता.
अधुना अतथा भावेपि एकांगेन भगवत संबंधात् तदनुभावेनैव अस्मिन् जन्मनि जन्मांतरे वा तथा बुद्ध्या स्वस्वकृत समर्पणेन स्वस्व सहजादि दोष निवृत्त्या कृतज्ञता संभवती इत्यर्थः। यानी अभी ऐसा नहीं है, अभी ठाकुर जी ने उनको अंगीकार नहीं किया है, पर अभी एकांगी संबंध तो हो ही गया है ना, यानी तुम्हारे द्वारा तो इनडायरेक्ट संबंध तो ठाकुर जी के साथ स्थापित हो ही चुको है। भले डायरेक्ट संबंध नहीं भयो है, उनको इनडायरेक्ट संबंध भयो है, पर भयो तो है, एकांगी संबंध तो भयो है। तो भगवत संबंधा तद अनुभावे, वाके अनुभव के रूप में, यानी अनुभाव यानी पश्चात जो हो वो भाव, यानी पहले तुम्हारो अंगीकार भयो है, वह के अनुभव से पीछे पीछे अस्मिन जन्मनि, या तो ये जन्म अगर ठाकुर जी की इच्छा हुई तो ये जन्म में भी अंगीकार हो सके, जन्मांतरे वा अन्य जन्म में भी, तथा बुद्धिया मतलब वैसी अगर उनकी बुद्धि हुई तो स्वस्वकृत समर्पण है ना, वो अपन अपनो जब समर्पण करेंगे आगे जाके तो उनके उनके सहज आदि दोष की निवृत्ति होगी और उनकी भी कृतार्थता हो जाएगी, ये अर्थ है। इति सहजादि दोषा निवृत्त्या कृतार्थता संभवति इत्यर्थ। अंगीकृतस्य सर्वांशे भगवान एवं चिंता करोति। अब जिनको अंगीकार कियो है उनको सर्वांश रूप से भगवान ही चिंता करेंगे। अपन ने तो पूरी कंप्लीट अथॉरिटी ठाकुर जी के हाथ में सौंप दी है, हाथ में न के अपन को के अपने चरण में सौंप दी है, वो कंप्लीट अथॉरिटी अपन ने ठाकुर जी को सौंप दी है। चाहे अपन ने मतलब सौंप दी है को मतलब ये नहीं है कि अपन ने दी ऐसा ठाकुर जी को प्राप्त भई है, ये बात नहीं है, पर अपनी तरफ से अपनी समझ अपनी वैसी हो गई है कि हाँ ठाकुर जी को ही है सब कुछ, चाहे अपन दो या ना दो वो तो ठाकुर जी को ही है सब कुछ। अपन चाहे निवेदन करो या न करो सब कुछ ठाकुर जी को ही है। ये तो अपनी बुद्धि में ठाकुर आचार्य चरण कृपा करके अपने को ये याद दिला रहे कि भाई तेरो नहीं है, तो अपन ने तो ये मान लियो है, तो वो अपने हिसाब से अपन ने तो अंगीकार ठाकुर जी को मतलब निवेदन कर दियो है। तो अपन ने जब निवेदन कर लियो है और ठाकुर जी ने अंगीकार कर लियो है, तो फिर बाकी संपूर्ण चिंता ठाकुर जी के ठाकुर जी के चरण में, सॉरी फिर सुन कहना चाहिए माथे पर, ठाकुर जी के चरण में है चिंता। स्वस्य इति उत्तम, यहाँ पे जो स्वस्य शब्द दिया है, स्वस्य इति पदम आवृत्तम अपि शब्देन संबध्यते, यहाँ पे स्वस्य का चिंता, स्वस्य सोपि चेता, यानी स्वस्य पद को अपि के साथ में संबंध बता रहे हैं कि ये कि अंगीकृतस्य सर्वांशे भगवान एवं चिंता करती, जो को अंगीकार कियो है वह को सर्वांश रूप से चिंता करवे को ठाकुर जी को ही है, या सु वो ही चिंता करेंगे। स्वस्य तु अधुनैव सहजादि दोष निवृत्त्या कृतार्थता सिद्धा, अपनी तो कृतार्थता कैसे हुई है, अभी अभी ठाकुर जी ने सहजादि दोष की निवृत्ति करी है, मतलब अपन ने जब निवेदन किया अपने तो अपने सहज आदि दोष की निवृत्ति तो अभी अभी हुई है। अधुनैव, अधुनैव का मतलब है अभी ही, क्रमेण तेषामपि संभवति, क्रम सु आगे जाके उनकी भी होगी। इति अपि शब्द, यहाँ पे सोपि चेत ये शब्द में जो अपि शब्द आयो है, यानी उनकी भी वैसी अंगीकृति होगी, उनको भी अंगीकार ठाकुर जी आगे चल के क्रम पूर्वक करेंगे, ये अर्थ है। तो यासु चिंता न कार्या। अब यथा, अब देखो यहाँ में चौथे श्लोक में अपन जा रहे हैं, तो वाक्य उत्थानिका में क्या कह रहे हैं, गोसाई जी आज्ञा कर रहे हैं, यथा पुत्रादीना तथा स्वस्यापि सह अन्य विनियोगश्चेत तथापि चिंता न कार्या इत्यादि अज्ञानादि। जा प्रकार से पुत्र भार्या आदि इनको अन्य विनियोग हो रहे है, वैसे ही खुद को भी अन्य विनियोग हो तो होए, तब भी चिंता नहीं करनी, ये बात आगे जा ये आगे के श्लोक में आज्ञा कर रहे हैं।
वो क्या है श्लोक? अज्ञानाद अथवा ज्ञानात् कृतम आत्मनिवेदनम यही कृष्णसात् कृत प्राणैस् तेषां का परिदेवना। अज्ञान सु अथवा ज्ञान सु, अज्ञान द्वारा अथवा अज्ञान द्वारा जिनने आत्मनिवेदन कर दियो है, कृतम आत्मनिवेदन यही कृष्ण साथ कृत प्राणैस् तेषां का परिदेवना, जिन्होंने अपने प्राण कृष्ण साथ कर लिए, मतलब कृष्ण को पूरे अपने अंदर आत्मसात कर लिया, ऐसे कृष्ण साथ कृत अपने प्राण कर लिए हैं, उनको क्या चिंता, उनको क्या खेद, कौन सी बात को खेद? परिदेवना का मतलब है खेद, तो उनको क्या खेद? तो अब एतम एव पक्षम आश्रित्य, अब ये देखो यहाँ पे वल्लभ जी एतम एव पक्षम आश्रित्य अग्रिम श्लोकाभासम आहु किंचेति, यहाँ पे किंच शब्द से ही आभास शुरू हो गयो है अगले श्लोक को, ऐसो वल्लभ जी आज्ञा कर रहे हैं कि यहाँ किंच शब्द के बाद में जो कही गई है बात, वो या कहीं आभास के रूप में ही कही गई है, यानी यही पक्ष को लेके कि भाई अपनों उत्तराधीन को अन्य विनियोग होते देख के का चिंता करना, वही पक्ष को लेके आगे को भी श्लोक कह रहे हैं कि स्वस्थ। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि देखो प्रथम पक्षे स्वस्य स्वकीयस्य स्त्री पुत्रादीनाम अपि स्त्री पुत्रादेरपि इति अग्रिम श्लोक व्याख्याने इत्यर्थ। प्रथम पक्षे स्वस्य स्वकीयस्य स्त्री पुत्रादेरपि इति अग्रिम श्लोक व्याख्याने इत्यर्थ, यानी अगले श्लोक के व्याख्यान में वो बता रहे। प्रथम पक्ष में यानी कि खुद के अन्य विनियोग होते देख, मतलब खुद को ठाकुर जी के, मतलब जिनने निवेदन नहीं किया है ऐसे स्त्री पुत्रादीन में खुद को विनियोग होते देख के चिंता नहीं करनी, ये तीसरे श्लोक में कही। और अब वाई के कंटिन्यूएशन में आगे के श्लोक में भी वही बात कह रहे हैं। अब यहाँ देखो गुसाई जी की जो पंक्ति है वो अपन देखें कि हीन मध्यम अधिकारिणा कारी भी रपी निवेदितात्मभिः चिंता न कार्या भवति यत्र तत्र कृष्णसात् कृत प्राणैः चिंता न कार्या इति किमु वाच्यम इत्यर्थ। अरे भाई, जहां हीन और मध्यम अधिकारी को भी चिंता नहीं करनी चाहिए, ऐसे निवेदित आदमी, निवेदित आत्मा जो हीन अधिकारी मध्यम अधिकारी हैं, उनको भी जब चिंता नहीं करनी चाहिए, तो जहां पे वहां पे अगर कृष्ण साथ कृत जिनने कर लिए हैं प्राणन को, उनको तो क्या ही चिंता करनी चाहिए, ये कहने को तात्पर्य है यहाँ पे। यही कृष्ण साथ कृत प्राणी तेषां का परिदेवना, उनको तो क्या ही चिंता होनी चाहिए, उनको तो क्या ही खेद होना चाहिए ये बात को। यहाँ पे तो हीन मध्यम अधिकारी को भी चिंता नहीं करवे की कह रहे हैं, वहां पे फिर कृष्ण साथ कर लिए हुए जिनने अपने प्राणन को, उनको तो क्या ही खेद करना चाहिए। केवलम प्रभु अधीनीकृत प्राणानाम चिंता विषय भावादेव न सा इति भाव। अब याकू देखो, ये केवल शब्द आया ना यहाँ पे, वाक्य स्पष्टीकरण वल्लभ जी की टीका में देखें अपन, केवलेति भगवद अधीन जीवा नाम सर्वांशे भगवदीयत्वेन विषयाः सर्वे भगवदीया एव इति भोग्य विषयेषु स्वीयत्वेन अभिमाना भावात् सा पक्षद्वय भेदेन स्व अन्य विनियोग जनिता पुत्रादि अन्य विनियोग जनिता वा चिंता नास्त्येव। अब ये पंक्ति को समझो पहले कि भगवद अधीन जिनके जीव हैं, मतलब जो जीव भगवान के अधीन हो चुके हैं, यानी जिनने अपनो सब कुछ निवेदन कर दियो है और अब हम आपके दास हैं ये कह दियो, तो वो कैसे हो गए? भगवद अधीन जीव हो गए। तो भगवद अधीन जीव जो हैं वो, उनको सर्वांश रूप से भगवदीयत्वेन विषया, उनके लिए ऐसे उत्तमाधिकारी की बात हो रही है हो यहाँ पे, जो उत्तमाधिकारी हैं और अब भगवद अधीन हो चुके हैं,
उनके लिए कैसे हो गए है कि सब विषय भगवदीय ही हों, सर्व मतलब जो सर्वात्म भाव संपन्न जो जीव हैं, जैसे कि गोपीजन आदि, उनके लिए तो सब विषय भगवान ही हैं। भगवदीयत्वेन विषयाः सर्वे भगवदीया एव इति भोग्य विषयेषु स्वीयत्वेन अभिमान अभावात्। यानी वो जहाँ को भोग करते हुए ना, वो जो भी वस्तु पदार्थन को उपभोग करते हुए, भोजन करते हुए या वस्त्र पहनते हुए या जो भी अपने विषय भोग करते हुए, वो विषय भोग वो उनकी वो भोग करते समय उनकी बुद्धि ऐसी नहीं होवे कि ये मेरो है। स्वीयत्वेन अभिमान अभावात्, यानी उत्तम अधिकारी जीवन की बात हो रही है, जिनको सर्वात्म भाव सिद्ध है ऐसे जीवन की। यानी गोपीजन वगैरह जैसे जीव हैं जो, वो जब कोई भी वस्तु को भोग करें तो आ वक्त उनके मगज उनके दिमाग में ये बात नहीं होवे कि ये मैं अपने लिए कर, ये भगवत प्रसादी है, ये ही उनकी बुद्धि हुए है। तो उनकी ऐसी बुद्धि न हो, स्वीयत्व की बुद्धि उनकी नहीं होवे सु सा पक्ष द्वय भेदे न स्व अन्य विनियोग, मतलब दोनों ही पक्ष की चिंता उनको नहीं होवे, न तो स्वयं के अन्य विनियोग होवे की चिंता होवे, जैसे श्रुति रूपा है, श्रुति रूपा तो अन्य अन्य पूर्वा हैं, जिनको विवाह अन्य गोपन के साथ हो चुको है, पर तथापि वो सर्वात्म भाव युक्त होने के कारण उनको उनको जो देहिक उपयोग कहीं पे भी हो रहा हो, बाकी उनको चिंता नहीं होती थी। पुत्रादि अन्य विनियोग जनिता हुआ चिंता नास्ते, न तो स्वयं की कोई चिंता होती थी, न ही अपने पुत्रादि अन्य जो संबंधी हैं उनको अन्य कहीं विनियोग हो रहा है तो वाकई वो चिंता करें, जो उत्तम अधिकारी जीव हैं वो। किंतु हीन मध्यमाधिकारिणाम अपनी तदभावार्थम बोध्यते, यानी हीन मध्यम अधिकारी के लिए वो भी ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बता रहे हैं यहाँ पे या श्लोक के अंदर। हीन मध्यम अधिकारी हैं उनको भी ऐसी चिंता नहीं होनी चाहिए। चिंता भावे हेतु पूर्वोक्त एवं सर्वेशा प्रभु संबंधो ज्ञेय। तो क्यों नहीं होनी चाहिए चिंता हीन मध्यम अधिकारी को, तो जो पहले के श्लोक में कही वही कारण है यहाँ पे वाको भी हेतु कि सर्वेशा प्रभु संबंध, भाई सबको संबंध प्रभु के साथ है। तुमने जब निवेदन कियो अपने संबंधन सहित कियो है, तो सबको संबंध प्रभु के साथ में हो ही चुको है, या चिंता नहीं करनी। पद संबंध अतएव का इति शब्दोक्त, यहाँ पे तेषाम का परिदेवना, यहाँ पे का यानी क्या चिंता, उनको क्या खेद, ये जो का शब्द दियो है वाकु कारण यहाँ पे बता रहे हैं कि अतएव का इति शब्द, यानी कि उनको क्या चिंता ये बताने के लिए यहाँ पे का शब्द दिया गया है। पद संबंधस्तु अज्ञानाद अथवा ज्ञानाद्यै तत्कृतम तेषाम सा न, यानी कि पद का संबंध चिंता के साथ में या परिदेवना के साथ में है, खेद के साथ में है, यानी अज्ञान के द्वारा या तुमने जान के समर्पण कियो हो या अज्ञान से समर्पण हो गया है तुम्हारा, तुमने वह अर्थ को जाने बिना तुमने समर्पण कर दियो है, निवेदन कर दियो है, तो भी कोई चिंता की बात नहीं है, और जान के कियो है तो चिंता की बात नहीं है। यानी अज्ञानाद अथवा ज्ञानाद्यै तत्कृतम तेषाम सा न इति शेषः, उनको वो नहीं होगी, क्या नहीं होगी, परिदेवना या चिंता ये नहीं होगी। कृष्ण सात्कृत प्राणे तत्कृतम तेषाम सा का इत्युक्तम, अगर कृष्ण सात्कृत प्राणन ने वो कियो है, निवेदन कियो है, उनको तो क्या ही चिंता, ये कहने को तात्पर्य। देखो आद्य व्याख्यान ने पूर्वम स्व अन्य विनियोग चिंता, यानी पहले श्लोक में जाके पहले के श्लोक में तीसरे श्लोक में कि खुद को अन्य विनियोग हो रहा है तो चिंता नहीं करनी, ये बात कही। द्वितीय पुत्रादि अन्य विनियोग चिंता उक्ता,
द्वितीय व्याख्याने इदम विपरीतम इति विभेदः। यानी दोनों में भेद खाली यही है कि पहले जो व्याख्यान में खुद को अन्य विनियोग हो पे चिंता नहीं करनी ये बात कही, और अब उत्तरादि को अन्य विनियोग होते हो तो भी चिंता नहीं करनी, ये दोनों में भेद है। तेषाम सा न इति, यहाँ पे जो तेषाम सा न, तेषाम सा नेति शेष, ये जो साईं जी का वाक्य है, वाकु यहाँ बता रहे हैं। स्वपदस्य स्वकीय वाचकत्व पक्षे सा पुत्रादि विषयिणी चिंता न इत्यर्थ। यहाँ पे स्वपद सु स्वकीय वाचक है वो, यानी स्वसु स्वसंबंधी लेने, मतलब स्वयं ही नहीं पर स्वसंबंधी जो स्त्री पुत्र आदि हैं उनके विषय में भी चिंता नहीं करनी है, ये अर्थ है। निवेदन पदार्थो न नश्यति विलंबस्तु भवत्येव इति ज्ञेय, यानी निवेदित किए हुए पदार्थ कभी भी नष्ट नहीं हुए हैं। अपन ने निवेदन कर दियो, वो आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, कभी न कभी जाके वो स्वीकृत होएगो ही, विलंब हो सके। क्यों कहे न के भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, तो एक जनरल वाक्य है। तो वाकु भी यहाँ पे अपन लगा सके कि जहाँ पुष्टि मार्ग को संबंध है वो तो साधारण कई में भी कहा जाए है कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, पर अगर वाई को अपन पुष्टि के संदर्भ में देखें तो वहां पे भी यही बात लागू हुए है कि ठाकुर जी देर सु स्वीकार करे हैं, पर नहीं स्वीकार करें ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है। क्यों? क्योंकि पुष्टि प्रभु हैं। वो बात की भी यहाँ पे आगे भी श्लोकन में आएगी, अगले श्लोक में आ रही है वो बात कि क्यों चिंता, क्यों विलंब होएगो, पर कभी भी ऐसा नहीं होएगो कि ठाकुर जी स्वीकार ना करें, ऐसा कभी नहीं होएगो। ये बात आगे के श्लोक में भी बता रहे हैं। विलंबस्तु भवत्येव इति ज्ञेयम्, ये यहाँ पे खत्म हुआ है अपना चौथो श्लोक के व्याख्यान। अब देखो जल्दी जल्दी आ रहा है क्योंकि अब ज्यादा वो है नहीं, अब सरलता है। यो देखो जाए तो सब श्लोकन में जैसे बहुत ज्यादा विश्लेषण या व्याख्यान आपके ऊपर आवे की नहीं है, जब तक कि आपको कोई शंका न हो। तो अब क्या के बाद के श्लोक को अपन देखें तो बाकी उत्थानिका में कह रहे हैं, ननु सख्य आत्मनिवेदने ही भगवद अंगीकारेण एव संपद्यते तथा च स्वयं आत्मनिवेदने कृतेपि प्रभु अंगीकृतवान् वा इति चिंता भवत्येव इति तत्राहु तथेति। शंका वाले क्या कह रहे हैं कि साक्ष्य और आत्मनिवेदन ये दो जो भक्ति हैं, नवधा भक्ति के अंदर 9 प्रकार की भक्ति हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवन, श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदन। अर्चन वंदन दास्य सख्य और आत्मनिवेदन, ये 9धा भक्ति है। तो ये में जो सख्य और आत्मनिवेदन, ये जो आखिरी 2 भक्तियां हैं, वामे परस्पर भक्त और ठाकुर जी को एक व्यवहार है। सख्य के लिए भी व्यवहार चाहिए, सख्य तो उनके साथ में भी, दोस्ती कोई अकेला तो नहीं करेगा। दोस्ती के लिए 2 पक्ष चाहिए ना, दोनों एक दूसरे के साथ में। जैसो याकू सामने वाले के साथ में भाव है, वैसे ही सामने वाले को याके विषय में हो गया है। तो वाकू अपन कहेंगे कि दोस्ती, तो वामे परस्पर व्यवहार चाहिए, और वैसे ही आत्मनिवेदन में भी चाहिए कि एक निवेदन कर रहा है और एक निवेदन को स्वीकार कर रहा है। अग्रीमेंट जब हो है तो 2-3 के बीच में होवे ना, एक अकेला थोड़ी अग्रीमेंट करे। तो ऐसे आत्मनिवेदन है, वो भी एक प्रकार का अग्रीमेंट है। तो वामे भी ठाकुर जी के द्वारा वाको व्यवहार होना चाहिए। जैसे ये निवेदन कर रहे है तो ठाकुर जी को वो निवेदन को स्वीकार करना होवे है।
तो सख्य और आत्मनिवेदन में भगवद अंगीकार के द्वारा ही वो संपादित हो गए हैं। अगर भगवान ने अंगीकार कियो है तुम्हारो सख्य के रूप, सख्य अंगीकार कियो है तो सखा भाव कभी न कभी जताएंगे तो मालूम पड़ेगी कि हाँ ठाकुर जी ने अपने को सख्य भाव को दान कियो है। ऐसे ही आत्मनिवेदन को भी ठाकुर जी स्वीकार करेंगे तो अपन सेवा कर पाएंगे। तो तथा च स्वयं आत्मनिवेदने कृते थी प्रभु अंगीकृतवान न वा इति चिंता भवत्येव। अपन ने तो ठाकुर जी को अंगीकार मतलब आत्मनिवेदन कर दियो, पर प्रभु ने वो स्वीकार करो है कि नहीं? गोसाई जी ने तो मुंहसिली कर दी। 252 वैष्णव तक ही ठाकुर जी वैष्णव उनके संग बात करते, अनुभव जताते, सानुभव वगैरह जताते थे, पर गोसाई जी ने फिर वो प्रसंग आवे है कि जहाँ मुंहसिली कर दी कि अब आप नहीं बोलोगे। तो वाके बाद में फिर श्री जी कोई के साथ में बोले नहीं, यासु अब ये मालूम कैसे पड़े कि अपन ने जो कियो है निवेदन वो प्रभु ने अंगीकार कियो है या नहीं कियो है। तो वाव संबंध में तो चिंता हो ही है। तो वैसी अगर चिंता होवे तो इति त्राहु तथेति, तो वो चिंता यदि हो रही है तो वाके लिए अगले श्लोक में आज्ञा कर रहे हैं कि तथा निवेदने चिंता त्याज्या श्री पुरुषोत्तमे विनियोगे पिसा त्याज्या समर्थो ही हरिस्वत। कह रहे कि तथा निवेदने चिंता त्याज्या श्री पुरुषोत्तमे, वह प्रकार की निवेदन में चिंता छोड़ देनी चाहिए। कौन के प्रति निवेदन में? श्री पुरुषोत्तम के प्रति निवेदन में वह प्रकार की चिंता त्याग कर देनी चाहिए। विनियोगे पिसा त्याज्य, और साथ ही साथ विनियोग संबंध में भी चिंता को त्याग कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि समर्थो हरि स्वतः ही निश्चयार्थक है। जैसे अपन क्योंकि ऐसे बोले तो वह अर्थ में यहाँ पे ही शब्द दिया है संस्कृत में कि समर्थो हरि ही स्वतः, भगवान स्वतः समर्थ है, यासु चिंता त्याग करना चाहिए। ये तो वो श्लोकार्थ। अब देखो कि साईं जी की क्या पंक्ति है। निवेदन विनियोग भी। चलो ठीक है। पुरुषोत्तम अंगीकृतवान न वा इति निवेदन विषयिणी या सा त्याज्या उक्त निवेदनवत इत्यर्थ। गोसाई जी ऐसी आज्ञा कर रहे हैं कि पुरुषोत्तम ने अंगीकार कियो है या नहीं, ये निवेदन के विषय की जो चिंता है वो छोड़ देनी चाहिए। सा त्याज्या उक्त निवेदनवत इत्यर्थ। अभी आपको वल्लभ जी क्या समझा रहे हैं कि इति निवेदन विषयिणी इति, जो इति निवेदन विषयिणी वापस स्पष्ट कर रहे हैं। इति असंपत्ति प्रकारेण निवेदन विषयिणी इत्यर्थ, यानी संपत्ति हुई, तुम्हारो निवेदन संपूर्ण हुओ के नहीं, संपूर्ण कब होगा? जब प्रभु अंगीकार करेंगे तो वाह विषय की जो चिंता है वाह को त्याग करना। पूर्वोक्तापि निवेदन विषयिणी है वह उक्त निवेदन वत। पहले की भी जो चिंता है वो भी निवेदन विषयिणी ही चिंता थी कि अन्य विनियोग हो रहा है वगैरह वगैरह, जो भी चिंता आती वो भी निवेदन के विषय की ही थी। परम हानि प्रकारेण उक्ति भाव, वहां पे हानि हो रही थी, निवेदन की हानि हो रही है यूं करके चिंता रही थी, क्योंकि अन्य विनियोग हो रहा है, मेरो अन्य विनियोग हो रहा है या मेरे संबंधी को अन्य विनियोग हो रहा है, तो निवेदन की हानि हो रही है, ये जो चिंता थी वहां पे हानि प्रकार की चिंता थी। पूर्वोक्तम एवं समाधानम अत्रापि ज्ञेयम इत्याहु उक्त निवेदकवत। तो जैसो समाधान वाके लिए तो वैसो ही समाधान यहाँ पे भी है
कि जैसे वहां कहीं की चिंता नहीं करनी, ऐसे ही यहाँ पे भी कह रहे कि चिंता त्याज्या। भाई क्यों त्याज्या? तो कह रहे हैं कि पुरुषोत्तमेन निरोध लीलायाम, गोसाई जी की पंक्ति देखो, पुरुषोत्तमेन निरोध लीलायाम स्वतो अन्य भजनम क्रियमाणा भक्तास तन्निवार्य स्वयं आत्मसात कृता इति तादृशे स्वयं सर्वात्मना निवेदने कृते सा शंका नोचिता इति ज्ञापनाय पुरुषोत्तम पदम। भाई तुमने निवेदन करो कौन को है, ये तो देखो, पुरुषोत्तम को कियो है तुमने निवेदन। और पुरुषोत्तम कैसे हैं? पुरुषोत्तम शब्द दियो है वासु, ये मालूम हो है कि निरोध लीला में, यानी कि भगवान है जो श्रीमद् भागवत में जो दशम स्कंध में जो लीला को वर्णन है, वो कौन सी लीला है? वो निरोध लीला है। तो वहां निरोध को अर्थ है अन्यत्र आपको आसक्ति हटा के स्वयं में आसक्ति करानी, निरोध करना। निरोध का मतलब है कि बाध करना कोई चीज को। जैसे अपन पानी नदी को बह रहा है, तो यहाँ वहां बह तो जावे, उसको रोक के अपन वाकू खेत की तरफ जहां पे जरूरत है वहां लाना चाहे तो अपन को क्या करना पड़े? वहां बांध बांधना पड़े ताकि वह को बहाव दूसरी जगह न जाए। तो वो अपन क्या कर रहे हैं? वह को निरुद्ध कर रहे हैं, वो प्रवाह को निरुद्ध कर रहे हैं, यानी अन्य जाते रोक रहे हैं। ऐसे ही ठाकुर जी ने जो लीलाएं करी दशम स्कंध में, जो बताई ब्रज में जो लीलाएं करी, ब्रज में भी और सब दशम स्कंध में विवृत जितनी भी लीलाएं वो सारी निरोध लीलाएं। तो निरोध लीला काय के लिए है कि अन्यत्र जो उनकी आसक्ति हो रही है उनके भक्तन की, वो रोक के स्वयं अपनी लीला के द्वारा रोक के, वहां में ये अपेक्षा नहीं रखी है भक्तन की सु के भाई तुम कछु अपनी तरफ से प्रयत्न करो, तुम कुछ मत करो, तुम सिर्फ समर्पित रहो। जैसे वो बिल्ली होवे ना, एक तो बंदर, वो न्याय ऐसा बताया गया है कि एक तो बंदर अपने बच्चा को कैसे संभाले और एक बिल्ली अपने बच्चा को कैसे संभाले। वासु अपने को दोनों में फर्क मालूम पड़े कि बंदर को बच्चा जो हुए, जब छोटो बच्चा हुए तो वो अपनी माँ से चिपक के रहे, कि वो यहाँ से वहां दौड़ती हुए तो भी वो गिरे नहीं, क्योंकि वो अपने माँ को ऐसे कस के पकड़ के रखे, वहां को पकड़ बहुत मजबूत हो। और वहीं बिल्ली को कैसे हो, बिल्ली अपने बच्चा को जब छोटो बच्चा हो तो वो बच्चा कछु नहीं करे, वो बिल्ली अपने मुंह में वाको ऐसे ढंग से पकड़ के लेके जाए कि वाको कछु तकलीफ भी नहीं होवे और वाकी रक्षा भी होती रहे। तो जैसे बंदर के बच्चा जो है, वहां पे जो बंदर को जो उदाहरण है वो मर्यादा मार्ग का प्रकार है कि वहां उनके स्वयं के प्रयत्न से वो रक्षित हुए हैं। और बिल्ली को बच्चा अपने प्रयत्न से नहीं, पर बिल्ली बाकी माँ जो है वो उसकी रक्षा करे है, वो बाकी पूरी। तो यहाँ पे भी ठाकुर जी निरोध लीला जब ठाकुर जी की है तो यहाँ में भक्तन से कुछ अपेक्षा नहीं रख रही, सामने स्वयं कृपा करके उनको निरोध अपने में करा रहे हैं। तो जहां ऐसी है वो कौन है? वो पुरुषोत्तम ही कर सके वो काम। तो अपन ने निवेदन कौन को किया है? पुरुषोत्तम को किया है, ये याद रखना चाहिए। यासु कही के पुरुषोत्तम निरोध लीलायाम स्वतो अन्य भजनम प्रियम, मतलब स्वयं जो अन्य भजन कर रहे थे ब्रज के जन, उनको उनके करते हुए भक्ता तन निवार्य स्वयं आत्मसात होता, उनको निवारण करवा के। तुम कात्यायनी को भजन कर रहे थे तो वो मिटवाए कि तुम ये सब मत करो, तुम ये गलत कर रहे हो करके ठाकुर जी ने गोपी जनन को वो भजन निवारण करवायो। और इंद्र को पूजन कर रहे थे तो वो निवारण करवायो। यहाँ तक कि अंबिका पूजन के लिए जा रहे थे नंदराय जी, तो वो भी अपनी लीला द्वारा वो सुदर्शन के द्वारा उनको ग्रसित करवाया नंदराय जी के पैर को, और फिर स्वयं आकर छुड़वाया।
तो ये सब क्या, अन्य भजन को निवारण करवा के और स्वयं आत्मसात किया ठाकुर जी ने। ये सब लीला कौन कर रहे हैं, पुरुषोत्तम कर रहे हैं। तो पुरुषोत्तम सु ये अपेक्षा अपन, मतलब पुरुषोत्तम अपनी तरफ सु अपने भक्तन सु कोई अपेक्षा नहीं रखी, स्वयं सारी पूर्ति करें। इति तादृशे स्वयं सर्वात्मना निवेदने कृते, ऐसे पुरुषोत्तम प्रभु में अपन ने सर्वात्म रूप से निवेदन कियो है, तो सा शंका नोचिता। कौन सी शंका नोचिता, जो यहाँ पे पहले भी अपन ने उठाई कि भाई सख्य और आत्मनिवेदन में भगवान के द्वारा अंगीकार हुआ या नहीं हुआ, ये अपने को कैसे मालूम पड़े या तो चिंता हो है। तो ऐसी शंका तो करनी ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम तो पुरुषोत्तम को समर्पित हो, न कि कोई विभूति को। इति ज्ञापनाय पुरुषोत्तम पदम, ये बतावे के लिए वहां पे पुरुषोत्तम शब्द दिया गया है। और वो भी कैसो, श्री पुरुषोत्तम। इति मूलस्थ तथा इति पदस्य अर्थोऽयम्। यहाँ पे जो तथा शब्द दियो है ना मूल में, यानी कि मूल जो आचार्य चरण को श्लोक है वहां में जो तथा शब्द दियो गयो है, वाक्य विषय में वल्लभ जी के आज्ञा कर रहे हैं कि तथा इति पदस्य अर्थोऽयम् सप्तम्यर्थ वाइति, मतलब तथा निवेदन, उस प्रकार के निवेदन करने में। किस प्रकार के, कि जहां पुरुषोत्तम को निवेदन हुआ है, वह प्रकार के निवेदन में चिंता त्याज्या। यथा निवेद के तथा पुरुषोत्तमेति मूलानुसंधान न अर्थ, मतलब निवेदक के विषय में जैसे वहां चिंता नहीं करनी है, वैसे ही पुरुषोत्तम के संबंध में भी चिंता नहीं करनी है। तथा च यथा पूर्व श्लोकोक्त रीत्या निवेदक कृत अन्य विनियोग हेतुक निवेदन हानि चिंता त्याज्या, तथा भगवत कृत अंगीकारा भाव हेतुक निवेदन संपत्ति चिंता भी त्याज्या इत्यर्थ। वल्लभ जी आज्ञा कर रहे हैं कि जैसे निवेदक ने को के द्वारा किए गए अन्य विनियोग सु निवेदन की हानि की चिंता छोड़ देनी चाहिए, वैसे ही भगवतकृत अंगीकार, भगवान के द्वारा अंगीकार हुआ है या नहीं हुआ है, या विषय में निवेदन संपूर्ण भयो के नहीं, या विषय की चिंता भी नहीं करनी है। ये अर्थ है। निवेदन असंपत्ति चिंता भी त्याज्या, असंपत्ति यानी पूर्ण कंप्लीट नहीं हुआ, ये बात की चिंता भी नहीं करनी है। पुरुषोत्तमेनेति, पुरुषोत्तमेन, ये जो साईं जी की पंक्ति को है, प्रथम शब्द वाको यहाँ पे देखो बता रहे हैं, एतेन हीन मध्यमाधिकारिणाम निवेदन विषयक चिंता भावो उत्तमाधिकारिणाम आहु तत्रापीति। क्योंकि पुरुषोत्तमेन शब्द सु ये बता रहे हैं कि हीन और मध्यम अधिकारी को भी निवेदन के विषय में हुई चिंता नहीं करनी है, क्योंकि पुरुषोत्तम को, मतलब ठाकुर जी प्रभु सर्वसमर्थ ही, चतुश्लोकी में भी वही बात कही है कि प्रभु सर्वसमर्थ होगी ततो निश्चिंतताम ब्रजेत। वही बात यहाँ पे कर रही है, तुमने सर्वसमर्थ ऐसे पुरुषोत्तम को निवेदन किया है, कोई ऐसे कोई विभूति को तो नहीं किया है कि जहाँ चिंता करनी पड़े। और उत्तम अधिकारी के लिए भी तत्रापीति, यहाँ पे देखो पुरुषोत्तम निरुद्धलायम सतो अन्य भजन प्रियमाणा भक्ता तन्निवृत्त्यर्थम स्वयं आत्मसात कृता इति तादृशे स्वयं सर्वात्मना निवेदने कृते सा शंका नोचिता इति। तत्रापि स्वरूपानंद दानेन अनिशम पोष्यमाणानां भक्तानां तदितरत्रोपयोग असंभवे नैव न शंकोदय इति ज्ञापनाय श्रीपदम। यहाँ पे भी पुरुषोत्तम के निवेदन हुआ है, वो तो बात सही है, पर वो भी साथ में श्री शब्द के साथ में है। केवल पुरुषोत्तम भी नहीं है, पर श्री शब्द के साथ में है।
तो श्री क्या बता रहा है कि स्वरूपानंद दानेन अनिशम पोष्यमाना। गोपीजन, श्रीपद जो है वो गोपीजन के लिए है। और गोपीजन कैसे हैं? जिनको ठाकुर जी ने अपने स्वरूपानंद के दान द्वारा नित्य पोषण किया है। अनिशम पोष्यमाणानां भक्तानां तद इतरत्र उपयोग असंभवेनैव न शंकोदय इति ज्ञापनाय श्रीपदम। यानी जिनको पोषण निरंतर भगवान अपने स्वरूपानंद के दान द्वारा करते रहे हैं, ऐसे भक्तन को अन्यत्र उपयोग तो असंभव ही है। यही तो उन्हें कही संत्यज्य सर्व विषयान स्तव पाद मूलम प्राप्ता। जब भगवान ने दास के लिए बुलाया और कही कि तुम वापस जाओ, तब गोपी जनन ने क्या कहा, हम तो सब विषय को त्याग करके आपके चरण में आई हैं। तो उनको तो अन्यत्र विनियोग हो ही कहां सके। वो तो जैसी हति वा स्थिति में छोड़ के गए। जैसे ही ठाकुर जी को वेणुनाद भयो, यानी ठाकुर जी को हमारी आवश्यकता है, ये सोच के वहां से भगी, खुद के लिए नहीं। हाँ, हमको आनंद को दान मिलेगा यूं सोच के नहीं गई, पर ठाकुर जी को अपने लिए, अपने लीला के लिए हमारी आवश्यकता है, ये सोच के जहां जैसी हती वैसी वहीं छोड़ के, कोई अपने पुत्र को, बच्चा को धावन करा रही थी, कोई अपने पति को परोस रही थी, कोई अपने श्रृंगार कर रही थी, कोई घर को मार्जन कर रही थी। जो जैसी स्थिति में थी वही स्थिति में वैसे के वैसे त्याग करके तुरंत दौड़ी। तो उनको अन्यत्र उपयोग संभव ही नहीं है। यासु शंका की उदय नहीं होना चाहिए। ऐसे भक्तन के पुरुषोत्तम को तुमने निवेदन किया। ये बतावे के लिए श्री शब्द के साथ में पुरुषोत्तम दिया है कि भाई पुरुषोत्तम भी ऐसे, जो ऐसे भक्तन के जो मतलब सदा पोषण देते रहे हैं, ऐसे भक्तन के पुरुषोत्तम को तुमने निवेदन कियो है। या सो तुमको कोई चिंता करनी ही नहीं चाहिए कि भाई उनने स्वीकार कियो है या नहीं कियो है। ये जैसे उनको स्वीकार कर लियो और अन्य को भी स्वीकार कियो ही है, ऐसे ही कोई को भी ठाकुर जी जब एक बार अंगीकार करें, जब तुम सर्वात्म रूप से निवेदन करो हो, तुम्हारो जो निवेदन है वो सर्वात्म रूप से होना आवश्यक है। तुम अगर सर्वात्म रूप से निवेदन कर रहे हो तो ठाकुर जी रक्षा तुम्हारी करेंगे ही। रक्षा ही नहीं, ठाकुर जी तुम्हारा अंगीकार करेंगे ही। से प्रहलाद जी ने कह दियो कि यहाँ थंबा में है ठाकुर जी, तो है। ठाकुर जी ने तुरंत वहां पे प्रकट होकर दिखा दियो। ये ठाकुर जी की पुष्टि है, ये कृपा है। तो वो हर प्रकार से ठाकुर जी तुम्हारो निवेदन स्वीकार करें ही हैं। और जब अन्यत्र कर रहे हैं, जब प्रहलाद जी जैसे भक्तन के लिए, तो ये तो श्री पुरुषोत्तम में तुमने निवेदन किया है, गोपीजन वल्लभ को निवेदन किया है। बहुत सी जगह पे, बहुत से घरन में ब्रह्म संबंध मंत्र के अंदर कृष्णाया श्री गोपीजन वल्लभाय ये शब्द आवे है। तो वहां पे श्री गोपीजन वल्लभाय शब्द सु यही बताया जा रहा है कि ऐसे गोपीजन वल्लभ को तुम समर्थन कर रहे हो। तो यासु भी कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जब तुमने गोपीजन वल्लभ को समर्पित किया है तो उनने अंगीकार किया ही है। तुम आपके लिए कोई रसीद की जरूरत नहीं है तुमको। सबसे पहले तो तुम उनको निवेदन कर पा रहे हो, यही तुम्हारी रसीद है। और कोई रसीद की जरूरत ही क्या है तुम, क्योंकि वो तो यमेवेश वृणुते तेन लभ्य है। तो जब तुम्हारा वर्ण होते दिख रहे हो है तो वही सब बता दे रहे हो है कि तुम्हारा अंगीकार हो गया है। और तुमको और क्या जरूरत है प्रूफ की। तो इति न शंकोदय इति ज्ञापनाय श्रीपदम। तद इतरत्रेति, यहाँ पे जो देखो तद इतरत्र उपयोग असंभव नैव, ये जो उनको अन्यत्र उपयोग असंभव है, ये जो बताया गोसाई जी ने वाकु यहाँ और स्पष्ट कर रहे हैं।
अंबिकावन गमनेपि तम दोषम निवार्य स्वस्मिन्नुपयुक्ता सर्वे कृता। यानी अब ठाकुर जी ने ये अंबिकावन को प्रसन्न कब आवे है कि जब ठाकुर जी ने गोवर्धन पर्वत उठा लियो, इंद्र के कोप सुरक्षा कर ली, वाके बाद अंबिकावन को प्रसन्न। अब तुम सोचो कि जब इतना बड़ा ठाकुर जी ने दिखा दियो करके कि मैं अपने जीवन के लिए ये भी करवे को तैयार हूं, मैं एक छोटी उंगली पे पूरा पर्वत उठावे को, तो मैं सब कुछ तुम्हारे लिए करवे को तैयार हूं, इतना होवे के बाद में अंबिकावन की तरफ जावे को नंदराय जी को कारण ही क्या? होना ही नहीं चाहिए ना। तथापि वो भय या में कोई वो नहीं है, अपन के ऊपर प्रश्न नहीं, नंदराय जी के ऊपर अपन प्रश्न नहीं कर रहे हैं, पर ये खाली बतावे की बात है कि जब उतना होवे के बाद भी ठाकुर जी ने वहां पे अंबिकावन तो जैसो उनने कियो तो भी वहां जाके ठाकुर जी ने उनकी रक्षा करी है। यानी हीन मध्यम अधिकारी भी हुए, उत्तम अधिकारी ही नहीं पर हीन मध्यम अधिकारी भी हुए, तो भी ठाकुर जी उनको निवेदन स्वीकार करें ही हैं। क्योंकि जब सुदर्शन ने ग्रसे उनको पैर, तब नंदराय जी ने सीधे ठाकुर जी को ही आवाज लगाई। तब कोई अंबिकावन में के देखने के लिए वो तो कुतूहल से जा रहे थे, ये भी नहीं है कि भक्ति से जा रहे थे, वो तो कुतूहल से जा रहे थे। यासु उनने कोई अंबिका को आवाज नहीं लगाई, उनने आवाज लगाई ठाकुर जी को, तो ठाकुर जी ने तुरंत आके उनकी रक्षा कर ली। वो सुदर्शन नाग को चरण, वो तो वहां पे भी प्रश्न, वहां पे भी वह सुदर्शन के ऊपर कृपा करनी है थी यासु, ये सारा प्रश्न न कि कोई नंदराय जी को कोई हमें दोष हतो यासु। पर कहवे को तात्पर्य यह है कि वा प्रकार को यदि कोई करतो हो तो भी ठाकुर जी उनकी रक्षा करेंगे, उनको अंगीकार करेंगे। रामानंद पंडित की बात ऐसे, इनको भी ठाकुर जी ने तो स्वीकार किया ही, उनको छोड़ो ही नहीं है ना। तो ये हीन मध्यम अधिकारी की बात हुई। अंबिकावन के गमन पे भी वहां को दोष निवार के स्वयं उनको स्वीकार किया और उनको बचाया। रासस्थानम तो गमनमेव नास्ति, रास में जो आ गई थी उनको तो वापिस जानो ही नहीं है। तो यहाँ पे तो अंबिका वन में नंदराय जी को मन भयो जावे को, पर यहाँ पे रास में जो स्थित गोपियां थी उनको ठाकुर जी ने कही कि तुम वापिस जाओ, तो उनको जानो नहीं है। तो कि हम नहीं जाएंगे, यूं कह दियो कि आप ऐसे निशंस वाक्य क्यों कह रहे हो आप हमको कि वापिस चले जाओ, आप ऐसे हमको क्यों, हमको तो जाना ही नहीं है। मतलब हीन मध्यम अधिकारी और ये उत्तम अधिकारी, तो भी ये स्थिति है। इदम अंगीकार स्वरूपम ज्ञेय यासु, या के द्वारा ठाकुर जी के द्वारा अंगीकृति कैसी होवे वाको स्वरूप बता। तथा च तद्युक्ते तत्र निवेदन साथ त्याज्य भाव। तद्युक्ते मतलब श्री सहित कृष्ण को तुमने समर्पित कियो है, तो श्री सहित श्री युक्त जो है उनको जो निवेदन कियो है, तो चिंता नहीं करनी है। न सा त्याज्य इति भाव। तद्युक्ते इति, अब या तद्युक्ते को भी वल्लभ जी और स्पष्ट कर रहे हैं। सॉरी, या के ऊपर की पंक्ति अपन ने नहीं देखी ना, हाँ ये पहले देख रहे। तथापि उत्तम अधिकारिणाम तो भगवदीयेभ्य इतरत्र उपयोग एवं न संभवती। वो बात अपन ने पहले ही देख ली कि जो उत्तम अधिकारी हैं वो तो भगवदी, ऐसे भगवदीयन को तो इतरत्र उपयोग ही असंभव है। तस्मिन् सति ही तादृश शंका भवती इति भाव। यासु ऐसे इनके प्रति या प्रकार की शंका नहीं होनी चाहिए। तद्युक्ते इति, यहाँ पे जो गोसाई जी ने तद्युक्ते शब्द दिया है वाको स्पष्ट कर रहे हैं। ताभी श्रीपद सूचित लीलाभिश्च युक्ते निवेदने सति भ्रमात् प्राप्ता शंका त्याज्या इत्यर्थ। जब ऐसे लीला सहित पुरुषोत्तम लक्ष्मी सहस्र लीला भी सेव्यमान कलानिधि, ऐसे जो प्रभु हैं वो श्रीपद सूचित हो रहे है, तो ऐसे
ठाकुर जी के प्रति जो अपन ने निवेदन किया उनके विषय में जो यदि अपन को भ्रमसु ऐसी शंका हो गई है कि भाई आपने हमारा निवेदन स्वीकार किया है कि नहीं, तो वो ऐसी शंका को त्याग कर देना चाहिए। ये अर्थ है यहाँ पे, ये अर्थ के लिए ही यहाँ पे श्री पुरुषोत्तम शब्द दियो होतो। कदाचित लोक भयादि उपस्थितौ तन निवारणाय जीव स्वभाव वशाद अन्य विनियोगेपि तथेति आहु विनियोगेपि। अब मेरे ख्याल से आज अपन यहाँ रख लें, मैं चाह रहा था कि मैं ये श्लोक पूरा कर लूं, पर फिर भी तीसरी पंक्ति को भी जरा और फ्रेश अपन दिमाग के साथ में पढ़ेंगे तो अच्छो रहेगा। बहुत ज्यादा उतावल भी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो कभी कभी ऐसा हो जाएगा अपन को मैराथन में दौड़ रहे हो ऐसी भाव आ जाए कि अपन चलो आज 2-3 श्लोक साथ कर डाले, पर फिर याद आवे कि नहीं भाई अपन को एक एक शब्द को अच्छी तरह से समझना जरूरी है। ऐसा इतना भाग दौड़ करने की क्या जरूरत है। अपन अगले सप्ताह पुनः मिलेंगे और अपन आपको ये जो 2 पंक्तियां हैं उनको अर्थ अच्छी तरह से अपन समझेंगे और भगवत कृपा से अगर आगे बढ़ सके तो आगे भी बढ़ जाएंगे। तो ठीक है, तो आज अपन यहाँ विराम ले रहे हैं। तो आप लोगों को अब कुछ प्रश्न हो तो हैंड रेस करियो, तो अपन आगे पर चर्चा कर लेंगे। वेटिंग। विपुल कहीं चिंता, आई मीन कोई प्रश्न? आवाज नहीं आई, अनम्यूट करके बोलो। नहीं आ रही आवाज। आवाज ही नहीं आ रही है। तुम्हारे यहाँ कुछ प्रॉब्लम है, अनम्यूट नहीं हो रहा है। चलो और कोई, अगर आवाज नहीं आ रही है तो टाइप करके अपनी शंका पूछ लो, अगर है तो। શ્રીપદ નો અર્થ સ્વામિની પણ હા, સ્વામિની પણ થાય છે, સ્વામિની અને ગોપીજન બંને જ છે, પણ અહીં ખાસ તાત્પર્ય ગોપીજન નો લેવાનો છે, એવી રીતનું છે। સ્વામીજી નું તો છે જ, श्री पुरुषोत्तम स्वामिनी सहित पुरुषोत्तम यानी स्वामिनी में गोपीजन भी आई जावे। हाँ उमंग बोलो। बाबा આજે કોઈ ક્વેરી યા શંકા તો નથી। આપણે આ સત્ર જે છે 10th જુલાઈના સ્ટાર્ટ થયો હતો, એક્ઝેક્ટલી 3 મહિના પહેલા, જે 9th છે તો 10th જુલાઈના સ્ટાર્ટ થયો હતો। તો એ કારણે જેટલી મનમાં વિચારો હતા યા જે મતલબ કે સ્થિતિ હતી અને એના પછી જે આ સત્ર એવરી વીક થઈ રહ્યા છે યા જે ગેપિંગ થઈ એના બાવજૂદ પણ લિટરલી આ વસ્તુ હાથ પવિત્ર કરવા ટાણે પણ ફીલ કરી છે અને રેગ્યુલર લાઈફમાં પણ ફીલ કરી છે કે લિટરલી હવે જ્યારે પણ કોઈ પણ વસ્તુનો અગર મનમાં વિચાર આવે ને તો સીધું આપની વાણી એકદમ ક્લિક થાય કે નિવેદન કરી તો પછી ચિંતા કઈ વાતની। બરાબર, બિલકુલ। ચાલો ये सफलता मतलब કે અને આજે પણ આજે આખો સત્ર જે ચાલ્યો 1 કલાકનો, લિટરલી आई वाज रिवाइविंग ऑल दिस, मतलब કે હું આ બધું હું મારી લાઈફને રિવાઇવ કરી રહ્યો હતો અને હું ઈ ફીલ કરી રહ્યો હતો કે ઠાકોરજી કયા કયા જગ્યામાં કેવી કેવી રીતે કયા કયા પાર્ટને मतलब કે લિંક કર્યા છે। બરાબર। આપના જે જેમ કે નિવેદનમાં, તો નિવેદનમાં
મારું અને મારા ભાઈનું બ્રહ્મ સંબંધ એક સાથે થયેલું છે. હા હા પણ એકચ્યુઅલી અમારા ઘરમાં જે છે કોઈ પણ સેવામાં કેવી રીતે નથી આવતું. અને લિટરલી લાઈક જ્યારથી ઠાકોરજી પુષ્ટ થઈને પધાર્યા છે તો હા. એ લોકો સેવામાં ના આવે પણ દર્શન ખાલી કરવા આવે. અને લિટરલી જ્યારે હું આઉટ ઓફ જાઉં તો હવે તો મારો ભાઈ નાઈટ પણ છે અને પોચે પણ છે. મતલબ એ લોકોનું એમ કેવું છે કે જે રીતે પણ છે અમે ઠાકોરજીને પહોંચશું, બારે કોઈના ઘરે પધરાવાની શું જરૂર છે. વાહ, બઢિયા. તો લિટરલી મતલબ કે આ ફીલ થાય છે કે ઠાકોરજી ભલે મોડેથી અંગીકાર કરે છે પણ જ્યારે અંગીકાર કરે છે તો એ જીવનો પૂરી રીતે અંગીકાર કરે છે. બિલકુલ બિલકુલ બિલકુલ. એટલે આ આજની શંકા નથી પણ આ એક થેન્કફુલનેસ આપને કહેવાનું ઈચ્છા થાય છે કે આ બહુ જ આ સત્ર મતલબ બહુ આનંદ પણ આવી રહ્યો છે અને લાઈફમાં પણ એ વસ્તુને ફીલ કરી રહ્યા છે. चलो, बहुत सारी बात है। बहुत खुशी भाई मेरे को ये जान के कि आप लोगों को फील भी हो रहा है और जो भी आप पढ़ रहे हो वो आप खुद महसूस भी कर रहे हो, अनुभव भी कर रहे हो। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत कृपा है आचार्य चरणन की और सदा ऐसी कृपा बनी ही रहे आप सबन पे और सब पुष्टि जीवन पे। चलो, तो अब और कोई प्रश्न? हाँ, आशीर्वाद। और कोई के है नहीं लग रहे हैं तो अपन यहाँ पे विराम लेके और अपन आश्रय को पद लें। गोवर्धन की रहिए तरेटी, श्री गोवर्धन की रही, नित्य प्रति मदन गोपाल लाल के, चरण कमल चित लहिए तरेटी, श्री गोवर्धन की रही, तन पुलकित ब्रज रज में लोटत, गोविंद कुंड में नहीं, रसिक प्रीतम हित चित की बातें, श्री गिरधर जिसो कहिए तरेटी, श्री गोवर्धन की रही। और साथ साथ मैं फेसबुक पे जो है उनको भी मैं कह दे रहा हूँ, क्योंकि उनको भी अगर कोई शंका है तो वहां पे भी आप अगर टाइप कर दोगे तो मैं हमेशा देखूं हूँ आप लोगों के कमेंट्स। तो अभी तक तो कोई आए नहीं ऐसी कोई शंका वहां पे, केवल दंडवत प्रणाम आदि ही आवे है। पर तथापि यदि आपके कोई प्रश्न है, शंका है, कुछ पूछनो है, कहनो है, तो अवश्य आप कमेंट में करियो, तो मैं वो देख के और जरूर मैं आपको रिप्लाई करूंगा। ठीक है, तो अब अपन यहाँ पे विराम ले रहे हैं। आप आज को सत्र यहाँ पूर्ण हो रहा है। अब अगले सप्ताह पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए विजय तेश्वरी।